Okay, I have sharing my screen. I think all are you able to see the screen? Okay. So today, last time we have did some virtual circuit, right? We have build a circuit using tinkercad.com, in which we have seen the how to glow the LED bulb, simple circuit, how to glow the LED bulb, right? So today we are going to take the next step, and we are going to blink same LED. The last time the LED project that we have used is just was simple project to glow the LED, right? So in this case, we are going to glow the LED, and sorry, in this case we are going to blink the LED, right? So in this last time, might be many of you already did this project using Arduino board, right? But many of you haven't did that project. But today we are also going to do the same thing using Arduino board. So I am going to my tinkercad.com website, and I hope you have already created the account in this Tinkercad website. Okay, because you need to build a virtual circuit in this Tinkercad only. So I am opening my tinkercad.com website, and this is my homepage of the tinkercad.com. So today we are going to create a new circuit. So I am going to click on this create new circuit. It is loading, dear students. So before doing the project, means before doing the how to do the blinking LED को कैसे blink करना है, इसके पहले हम जानते हैं कि LED के blink करने के पीछे हमारा logic क्या है, means logic क्या होता है LED को blink करने के पीछे. Let us understand that first thing. Okay, this is my LED. Okay, so all are you able to see this thing? Okay, this is my LED. If I simply give the voltage supply through my battery, okay, this is my battery. If I do the connection, last time जैसे हमने connection किया था, अगर मैं वैसा connection करूंगा इस LED को, तो my LED will be just only will glow. Okay, it will not blink, right? So मेरा LED सिर्फ glow हो जाएगा, on हो जाएगा, लेकिन हमारा LED blink नहीं होगा, right? सो लेकिन हमें क्या करना है, इस एलईडी को ब्लिंक करना है. ओके, ब्लिंक करना है मतलब इस एलईडी को बंद चालू करना है, जैसे कि हमारा डिस्को लाइट होता है, वैसे आज हमें कुछ करना है. ओके, तो सबसे पहले कोई भी प्रोजेक्ट करने के पहले हम जानते हैं कि उसके पीछे लॉजिक क्या होता है. ओके, we need to know the logic behind that project. Okay, so today's project is to blink the LED. So let us understand what is the logic behind this. Okay, suppose if I want to blink this LED, what just I need to do? If I given the supply to this LED, it will first glow. Okay, if I remove or cut off the supply of this LED, okay, it will do not glow, right? So अगर मैं supply देता हूँ, it will turn on. If I supply बंद करता हूँ, तो it will turn off, right? So this will thing happens, and in this case we can say that our LED is blinking, right? तो हमारा जो लॉजिक है इस एलईडी को ब्लिंक करने के पीछे, लॉजिक क्या है कि हमें इस एलईडी को सप्लाई देना है और सप्लाई कट करना है, सप्लाई देना है और सप्लाई कट करना है. सो वी नीड टू डू दिस रिपीटेडली सो दैट दिस एलईडी विल ब्लिंक. ओके, इफ अगर मैं बैटरी से सप्लाई दूंगा, इफ आई गिव दिस सप्लाई थ्रू दिस बैटरी डायरेक्टली, इट विल ऑलवेज बी टर्न ऑन, राइट? It is not possible to cut off the supply from this battery. If I do this, it will be manual thing, right? But we need a automatic thing. So in that case, we are going to use some another thing, that is one controller that is called as Arduino. So here is my Arduino board. So we are going to study today about this Arduino board. Okay, this is my Arduino board. The new thing that I have drag and dropped over here, this is new thing is called as Arduino Uno. Means it's a name Arduino Uno. Actually, it is called as Arduino board. Okay. First, before doing anything project, let us understand about this Arduino board.
हमें इस आर्डिनो बोर्ड का यूज करके हम इस एलईडी को आज क्या करना है, ब्लिंक करना है. सो इन ऑर्डर टू डू दैट फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस आर्डिनो बोर्ड. ये बोर्ड क्या होता है हमें पता होना चाहिए. एक्चुअली मेनी ऑफ यू ऑलरेडी यूज दिस बोर्ड. ओके, बहुत जन पहले से ही इस बोर्ड को यूज कर चुके हैं, लेकिन बहुत जन अभी तक इस बोर्ड से अनअवेयर है, राइट. सो वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन टू एवरीवन व्हाट इज दिस बोर्ड. अगर इस बोर्ड को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो आपके राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड, जो भी आप जैसा इसको टर्न करेंगे वैसा आपको पता चलेगा कि यहाँ पर कुछ पिन्स है. जो दिख रहा है ना, मैं आप कर्सर घुमा रहा हूँ देखो, और यहाँ पर एक रेड स्पॉट भी आपको दिखाई दे रहा होगा. सो दिस इज व्हाट ए पिन्स, दिस आर कॉल्ड एज ए पिन्स. पिन से मतलब क्या कि मैं यहाँ से कोई भी कनेक्शन दे सकता हूँ. अगर मुझे यहाँ से कोई कनेक्ट करना है तो देखो मैंने एक वायर कनेक्ट किया है, तो ये जो पिन्स है वो पिन्स वायर को कनेक्ट करने के लिए है. ओके, मतलब कोई भी अगर मुझे सेंसर का इनपुट देना है आउटपुट देना है, सो फॉर दैट केस आई विल यूज दिस पिन्स फॉर कनेक्शन पर्पज. ओके, यहाँ इस पिन के सामने ही कुछ नंबर्स लिखे हैं, राइट. फ्रॉम 0 to 13 देर आर नंबर्स रिटर्न, and 13 onwards some numbers also, some names are given like GND, AREF, right. लेकिन we need to know about today we are just going to see only about this 0 to 13 पिन. जो यहाँ पर 0 से 13 लिखा है ना, वो पिन के बारे में हम जानेंगे. 0 to 13 यहाँ पर क्यों लिखा है, क्योंकि इस पिन को हर एक पिन का एक नाम है. जैसे कि जो फर्स्ट पिन है उस पिन का नाम है 0 पिन, इसको हम 0 पिन कहते हैं, राइट. वैसे सेकेंड पिन का नाम है 1, थर्ड पिन का नाम है 2 एंड फोर्थ पिन का नाम है 3. वैसे ही हमारे पास ऐसे 13 नंबर तक पिन है. ओके, उसके आगे हम बाद में देखेंगे, लेकिन आज हम 0 to 13 नंबर पिन के बारे में पढ़ेंगे. ओके, सो ये जो पिन है 0 to 13 दे आर कॉल्ड एज अ डिजिटल पिन्स. ओके, दे आर कॉल्ड एज अ डिजिटल पिन. अभी हम उसे डिजिटल पिन क्यों कहते हैं, लेट अस अंडरस्टैंड दैट थिंग. ओके, डिजिटल पिन इसलिए कहते हैं हम इसको क्योंकि जो हमें इनपुट या आउटपुट जो भी उस पिन से हमें लेना है या फिर आउटपुट हमें देना है, दैट विल बी ऑलवेज इन ए डिजिटल फॉर्मेट. ओके, in order to clear that thing I will going to explain with you in with the I have opened my paint and I'm going to draw some things over here. Okay, okay, suppose you have a computer, right. आपके पास एक कंप्यूटर होता है, लैपटॉप होता है या फिर मोबाइल होता है, राइट. उस मोबाइल में आप देखते होंगे कि आपको आपका जो भी डेटा उस मोबाइल में सेव होता है, दैट डेटा ऑलवेज बी इन ए, आपके मोबाइल में जो भी आपके गाने हैं वीडियो है वो मोबाइल में डेटा कैसा स्टोर होता है, तो आपका जो भी डेटा इस मोबाइल में या कंप्यूटर में स्टोर होता है दैट ऑलवेज बी इन ए 010 फॉर्मेट. देखो आपका जो कंप्यूटर होता है या फिर आपका जो भी मोबाइल है या फिर जो भी डिजिटल अप्लायंस है, उसमें जो भी आपका डेटा या फिर जो भी आपका स्टोरेज होता है, उस स्टोरेज में डेटा स्टोर कैसे होता है, तो वो जो डेटा आपके मोबाइल में या कंप्यूटर में स्टोर होता है, वो मोबाइल में या कंप्यूटर में डेटा एक बाइनरी फॉर्मेट में स्टोर होता है. बाइनरी फॉर्मेट में स्टोर होता है मतलब 0-1 के फॉर्मेट में स्टोर होता है. लाइक यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 0-1-0-1 ऐसा कुछ तो मैं लिख रहा हूँ, राइट. एक 0-1-0-1 क्या है, एक नंबर सिस्टम है जो हम इसको कहते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम. और जो भी हमारा डेटा कंप्यूटर में स्टोर होता है दैट विल बी स्टोर्ड इन दिस बाइनरी नंबर सिस्टम. ओके, हमारा जो कंप्यूटर होता है वो सिर्फ 0 और 1 को समझ सकता है, बाकी और किसी चीज को समझ नहीं सकता. इसके लिए जो भी डेटा हम कंप्यूटर में रखते हैं वो ऑलवेज बी स्टोर्ड इन ए 0-1-0-1 फॉर्मेट. ओके, यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग. अभी ये 0 और 1 है, वैसे ही ना ये क्या कहलाते हैं, डिजिटल इनपुट्स आउटपुट्स पिन कहलाते हैं. मतलब ये 0 और 1 क्या है, ये डिजिटल है पिन्स. मतलब 0 क्या है, एक डिजिटल आपका सिग्नल है, और 1 क्या है, ये भी एक डिजिटल सिग्नल है. मतलब कंप्यूटर से आपको एक 0 या फिर 1 आउटपुट में मिल सकता है. अगर आपको कंप्यूटर में कुछ स्टोर करना है तो आपको 0-1 के फॉर्मेट में स्टोर करते हैं. आपका अगर गाना कंप्यूटर में स्टोर है तो आपका गाना कंप्यूटर में 0-1 के फॉर्मेट में स्टोर होता है. वैसे ही
जो हमारा टिंकर कैड है, और टिंकर कैड में जो बोर्ड है अपना आर्डिनो बोर्ड, टिंकर कैट में अपने जो आर्डिनो बोर्ड है और जो इसके पिन से ए बी ना आइदर 0 या फिर 1 आउटपुट दे सकते हैं। मतलब मैं इस पिन्स को आइदर एक्चुअली पिन्स बहुत पर्पस के लिए काम होते हैं। पहला पर्पस इनका ये है कि ये इनपुट के लिए यूज होते हैं, और दूसरा पर्पस ये है कि ये आउटपुट के लिए भी यूज हो सकते हैं। सो डिपेंडिंग अपॉन प्रोग्रामिंग दे विल बी चेंज्ड आइदर एज अ इनपुट और आउटपुट। ओके, सो ये जो पिन्स है, अगर मुझे इनसे आउटपुट चाहिए तो ये पिन्स क्या करेंगे, आइदर आपको 0 देंगे या फिर 1 देंगे। ओके, लेकिन इस जो पिन से हमें 0 1 मिलता है वो एक्चुअल में जो हम 0 1 देख रहे हैं वो नहीं मिलता है, बल्कि हमें अगर इस पिन से 0 मिल रहा है इसका मतलब ये है कि हमें 0 वोल्टेज मिल रहा है, क्योंकि ऑल दिस थिंग्स वर्क्स ऑन वोल्टेज। ओके, सो अगर इस पिन से मुझे जो भी यहाँ से 0 से 13 नंबर पिन है, अगर इस पिन से मुझे 0 आउटपुट चाहिए तो मैं 0 आउटपुट की जगह मुझे एक्चुअल में 0 जो होता है वो नहीं मिलता, उसके बजाय हमें 0 वोल्टेज मिलता है। एंड सिमिलरली अगर इन पिन से मुझे आउटपुट में 1 मिल रहा है तो 1 मिल रहा है इसका मतलब होता है कि मुझे इस पिन से 5 वोल्ट मिल रहा है। सी देखो, अगर मुझे सपोज मुझे उस पिन से 0 का 0 रिप्रेजेंट किया जा रहा है, 0 है यहाँ पर उस पिन में अगर 0 है, सो ये 0 रिप्रेजेंट कर रहा है 0 वोल्टेज को। ये जो 0 इस पिन से अगर मुझे आउटपुट में मिल रहा है तो आउटपुट में हमें क्या मिल रहा है, तो 0 वोल्टेज मिल रहा है। अगर ये पिन मुझे 0 रिप्रेजेंट आउटपुट दे रहा है तो वो पिन मुझे आउटपुट में 0 वोल्टेज दे रहा है। ओके, सो 0 विल बी 0 वोल्ट। ओके, सो 0 मुझे अगर उस पिन से मिल रहा है तो इसका मतलब मुझे 0 वोल्टेज मिल रहा है। सिमिलरली अगर मुझे उस पिन से 1 मिल रहा है, क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है, तो अगर ये 1 मुझे उस पिन से मिल रहा है तो इसका मतलब ये है कि मुझे उस 1 की जगह क्या मिलेगा, 5 वोल्ट मिलेगा। क्या मिलेगा, बिकॉज ऑल दिस थिंग्स आर कवर्ड इन दी वोल्टेज। अगर 0 मिल रहा है मतलब मुझे 0 वोल्टेज मिलता है, और 1 मिल रहा है उस पिन से इसका मतलब मुझे 5 वोल्ट मिल रहा है। ओके, ये जो आपको डिजिटल स्पिन दिख रहे हैं फ्रॉम 0 to 13, दे आर आइदर गिव यू 0 वोल्ट और 5 वोल्ट। ओके, सो दिस वन थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड। अब हमें क्या करना है, जो हमारे पास एलईडी है यहाँ पर, एलईडी कहाँ गया अपना, हाँ अपना एलईडी इधर है। ओके, सो इस एलईडी को आज क्या करना है, हमें ब्लिंक करना है। तो मुझे इस एलईडी को सप्लाई देना है, और ये मैं अभी मुझे पता चला है कि ये जो पिन है इन पिन से मुझे 5 वोल्ट का सप्लाई मिलने वाला है। तो 5 वोल्ट का सप्लाई अगर मैं इस एलईडी को दूंगा तो इट विल बी टर्न ऑन। ओके, बट अगर मुझे 5 वोल्ट का सप्लाई में डायरेक्टली दूंगा इसको तो इट विल बी टर्न ऑन। ओके, इट विल बी ग्लो ऑन, हमेशा इट विल बी ऑन रहेगा, राइट। लेकिन मुझे क्या करना है, एलईडी को ब्लिंक करना है। सो जो 5 वोल्ट का सप्लाई मुझे इस पिन से मिल रहा है, I need to I need to change that supply। मतलब 5 वोल्ट फिर बाद में 0 वोल्ट, फिर 5 वोल्ट फिर बाद में 0 वोल्ट, ऐसा मुझे कंटिन्यूअसली करना है। ओके, इस पिन से मुझे 5 वोल्ट का सप्लाई भी मिल सकता है और 0 वोल्ट का भी सप्लाई मिल सकता है। सो मैं क्या करने वाला हूँ, इसको मैं प्रोग्राम कुछ इस तरह से करूंगा कि ये जो पिन भी यूज करूंगा मैं, इसमें से कोई भी पिन यूज करूंगा तो इसमें से मैं को आर्डिनो का ऐसा प्रोग्राम करूंगा, जो भी पिन में यूज करने वाला हूँ उसमें से मुझे कुछ देर के लिए 5 वोल्ट का सप्लाई मिले और फिर कुछ देर के लिए 0 वोल्ट का सप्लाई मिले, और ये जो थिंग है वो रिपीटेडली कंटिन्यूअसली होते जाए। ऐसा मैं अगर करूंगा तो मेरा एलईडी क्या हो जाएगा, ब्लिंक होना चालू हो जाएगा। ओके, आई होप यू ऑल आर यू गेटिंग मी, क्या कह रहा हूं मैं। सो दिस इज माई एलईडी। ओके, तो मैं आज इसको क्या करना है, हमें ब्लिंक करना है। तो मुझे इसको 5 वोल्ट का सप्लाई थोड़ी देर के लिए देना है, फिर बाद में मुझे 0 वोल्ट का सप्लाई देना है। ओके,
और मुझे आपको याद क्या रखना है, ये जो 0 से 13 पिन है वो आइदर आपको 0 वोल्ट देंगे, एज एन आउटपुट आप यूज करेंगे इस पिन को, तो आइदर 0 वोल्ट देंगे या फिर 5 वोल्ट देंगे। लेकिन कब 0 और कब 5 वोल्ट देंगे वो हम प्रोग्रामिंग के थ्रू देखेंगे। ओके, सो अगर मुझे इस बोर्ड को प्रोग्राम करना है तो मैं सिंपली यहाँ पर एक ऑप्शन है मेरे पास कोड करके, ओके, दिस इज अ ऑप्शन कोड करके लिखा है, इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो यू विल सी दैट समथिंग स्क्रीन लाइक दिस। ओके, लेकिन मुझे क्या करना है इसको, मुझे अगर इसको प्रोग्राम करना है तो मुझे कोड पे क्लिक करना है, तो यू विल सी सम काइंड ऑफ स्क्रीन लाइक दिस। ओके, और आपको इस ब्लॉक्स में से ना टेक्स्ट सिलेक्ट करना है। आर यू श्योर? ओके, मुझे टेक्स्ट सिलेक्ट करना है। टेक्स्ट इसके लिए क्योंकि जो ब्लॉक्स है वो ब्लॉक्स बिगिनर्स प्रोग्रामर के लिए यूज किया जाता है, जो छोटे बच्चे वगैरह होते हैं उनको समझाने के लिए ब्लॉक्स की ट्रिक यूज की जाती है। ओके, बट वी आर नॉट गोइंग टू डू दैट थिंग, वी आर गोइंग टू यूज द टेक्स्ट फॉर्मेट इन दिस केस। प्रोग्रामिंग करना मतलब क्या होता है, पहले लेट अस अंडरस्टैंड दैट थिंग, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम जो लेक्चर आपने अटेंड किया जिसने एलईडी ब्लिंकिंग ट्रैफिक लाइट का प्रोग्राम जिसने किया है, जो प्रोजेक्ट जिन्होंने किया है उनको मैंने बताया नहीं था कि प्रोग्रामिंग मैंने क्या की थी, राइट। लेकिन आज मैं दोनों चीजें बताऊंगा कि जो मैंने इस आर्डिनो बोर्ड के लिए मैंने प्रोग्राम किया था वो प्रोग्राम मैंने क्या एक्चुअली किया था, और जो एलईडी ब्लिंकिंग के लिए जो प्रोग्राम है आज हमें करना है वो भी मैं आज मैं आपको बताने वाला हूँ। ओके, तो प्रोग्रामिंग क्या होता है, पहले लेट अस अंडरस्टैंड दैट थिंग। प्रोग्रामिंग मतलब सपोज हमारा, मैंने कहा था अभी, जो हमारा कंप्यूटर है वो 0 1 के फॉर्मेट 0 1 की भाषा समझता है। ओके, इट विल नॉट अंडरस्टैंड एनी अदर थिंग, इट विल जस्ट अंडरस्टैंड 0 1 0 1। ओके, मतलब अगर मुझे मैं कंप्यूटर में मुझे 2 स्टोर करना है तो 2 के लिए मैं 0 1 ऐसा स्टोर कर सकता हूँ। अगर कंप्यूटर 2 स्टोर कर रहा है अपने मेमोरी में तो 2 स्टोर नहीं करता है, वो क्या स्टोर करता है, 1 0 स्टोर करता है, 1 0 स्टोर करता है। एक्चुअली इट इज नॉट 10, दिस इज अ बाइनरी रिप्रेजेंटेशन, इसको हम कहते हैं बाइनरी रिप्रेजेंटेशन। इसके लिए हम बाइनरी रिप्रेजेंट करने के लिए इसके बेस में हम 2 भी लिख सकते हैं सर, 2, क्योंकि ये रिप्रेजेंट करना है कर रहा है बाइनरी। ओके, सो हमारा कंप्यूटर हर चीज को कैसे स्टोर करता है, 0 1 के फॉर्मेट में। तो अगर 2 स्टोर कर रहा है तो इट विल बी स्टोर एज ए 1 और 0। ओके, ऐसा कुछ स्टोर करता है। अब हमें कंप्यूटर प्रोग्रामिंग करना मतलब क्या होता है कि हमें कंप्यूटर से अगर कोई काम करवाना है या फिर कंप्यूटर से हम चाहते हैं कि कंप्यूटर ये टास्क करे, तो उसके लिए हम क्या कहते हैं, प्रोग्राम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं। अभी हमारे पास ये आर्डिनो यूनो है। ओके, तो मैं इस आर्डिनो यूनो को क्या करना चाहता हूँ, यहाँ से कोई भी एक पेन में यूज करना चाहता हूँ और इसको मैं एक इंस्ट्रक्शन देना चाहता हूँ कि कुछ समय के लिए मुझे यहाँ से इस पेन से 5 वोल्ट का सप्लाई मिले और फिर कुछ समय के लिए मुझे 0 वोल्ट का सप्लाई मिले, ऐसा मैं इंस्ट्रक्शन इसको देना चाहता हूँ। अगर मैं इसको अपने जैसे हम ह्यूमन लैंग्वेज बात करते हैं वैसे इसको मैं बात करूंगा तो मुझे ये समझ नहीं पाएगा आर्डिनो बोर्ड, राइट। इसके लिए मुझे इसको इंस्ट्रक्शन देने के लिए इसको मुझे क्या करना पड़ता है, प्रोग्राम करना पड़ता है। तो प्रोग्रामिंग करना मतलब इंस्ट्रक्शन देना। मैं कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इस आर्डिनो बोर्ड को दूंगा जिससे उसको पता चलेगा कि उसको करना क्या है। ओके, तो प्रोग्रामिंग करना मतलब कि इसको इंस्ट्रक्शन देना। सो प्रोग्रामिंग इज नथिंग बट ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। अभी इंस्ट्रक्शन देने के लिए हमारे पास ना इनबिल्ड बहुत सारी चीजें होती है, माइट बी यू विल नॉट गेट इन दिस ओनली लेक्चर, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको पता चलेगा। ओके, यहाँ पर मैं पहले प्रोग्राम करके बताता हूँ आपको कि मैं एक्चुअली में प्रोग्राम करता हूँ मतलब क्या करता हूँ, आपको पता चलेगा। ओके, साइड बाय साइड लेट अस अंडरस्टैंड मैं क्या कर रहा हूँ भी मैं बता दी देता हूँ। ओके, ओके, यू कैन, मैंने जब कोड को ओपन किया तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पर कुछ चीजें लिखी हुई है, सो मैं उसको मिटा देता हूँ बिकॉज यू विल गेट कंफ्यूज। मैं इसको मिटा देता हूँ। ओके, यहाँ पर सिंपली अभी सिर्फ 2 चीजें, एक वॉइड सेटअप करके लिखा है और यहाँ पर एक वॉइड लूप करके लिखा है। ये जो वॉइड सेटअप है फर्स्ट थिंग एंड ये जो वॉइड लूप है सेकेंड थिंग, दे आर कॉल्ड एज अ फंक्शन। ओके, फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए। लेट अस अंडरस्टैंड फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज मीन बाय फंक्शन। देखो, फंक्शन क्या होता है हम अंडरस्टैंड करते हैं सबसे पहले, क्योंकि जो भी हम चीजें करते हैं वो फंक्शन के थ्रू ही करते हैं।
देखो फंक्शन मतलब कोई बड़ी बात नहीं है। सपोज आपके पास एक मशीन है, सपोज ये आपके पास एक मशीन है, ओके। इस मशीन को अगर मैं कुछ इनपुट दूंगा, अगर इस मशीन को मैं कुछ इनपुट दूंगा यहाँ से, तो दिस मशीन विल गिव यू सम आउटपुट, राइट। दिस मशीन विल गिव मी सम आउटपुट, ओके। अगर इस मशीन को कुछ इनपुट में दूंगा तो इट विल गिव यू सम आउटपुट, राइट। सिमिलरली फंक्शन भी इस मशीन की तरह ही होता है। फंक्शन में अगर हम कुछ इनपुट देते हैं तो फंक्शन हमें रिटर्न में कुछ वैल्यू देता है। तो इस मशीन को, ये जो आपको मशीन दिख रही है, एक छोटा सा मैंने बॉक्स बनाया है, इस मशीन को मैं क्या कह सकता हूँ, फंक्शन कह सकता हूँ, ओके। इसको, इस मशीन को मैं फंक्शन कह सकता हूँ। लेकिन जो मशीन होती है वो फिजिकल होती है, लेकिन जो हमारा फंक्शन होता है वो इट्स अ टेक्स्ट फॉर्मेट में होता है। इट इज नॉट, यू विल नॉट सी इट फिजिकली, राइट। ये जो यहाँ पर लिखा है वाइड सेटअप करके, वाइड सेटअप क्या है, एक फंक्शन है। ये सेटअप फंक्शन का नाम है। और जो वाइड है, आप इनिशियली अज्यूम करो वाइड लिखना होता है करके, ओके। वाइड का मतलब मैं आपको बाद में बताऊंगा, जब हमें फंक्शन की से कोई वैल्यू रिटर्न चाहिए होती है तब जाकर को आपको पता चलेगा वाइड क्या होता है। लेकिन फिलहाल हमें फंक्शन से कोई वैल्यू रिटर्न नहीं चाहिए, इसके लिए आप इतना याद रखें कि फंक्शन क्या होता है। फंक्शन को अगर हम इनपुट देते हैं तो इट विल गिव यू सम आउटपुट, ओके। सो लेट अस अंडरस्टैंड दिस वाइड सेटअप फंक्शन। अगर इस मुझे आर्डिनो बोर्ड को प्रोग्राम करना है तो डेफिनेटली आई एम गोइंग टू यूज सम ऑफ दिस पिन्स, जो यहाँ से 0 से लेके 13 पिन है, तो उनमें से कोई किसी पिन को मुझे यूज करना है, राइट। तो मुझे क्या करना होता है इसमें वाइड सेटअप में, सेटअप करके एक जो फंक्शन है इसके अंदर मुझे लिखना होता है कि मैं कौन से पिन यूज करने वाला हूँ, ओके। बिकॉज सेटअप का मतलब ही होता है कि हम क्या सेट करना चाहते हैं किसी चीज को। मतलब इस पिन को, यहाँ पर 12 नंबर पिन है, ओके। अगर इस 12 नंबर पिन को मुझे आउटपुट एज एन आउटपुट यूज करना है तो मैं यहाँ पर लिखूंगा कि मुझे इस 12 नंबर पिन को एज एन आउटपुट यूज करना है। हो सकता है आपको ये जो 12 नंबर की पिन है एज एन इनपुट भी यूज करना हो, राइट। तो आप उस समय यहाँ पर सेटअप में लिखेंगे कि 12 नंबर की जो पिन है आपको वो एज एन इनपुट सेट करना है। तो अभी हम सेट कैसे करेंगे, चलो देखते हैं, ओके। जो भी प्रोग्रामिंग होती है उसमें ना प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं। तो यहाँ पर जो सेटअप फंक्शन है वो हम लिख रहे हैं, लेकिन एक प्री डिफाइंड फंक्शन है, उसका नाम है पिन मोड। पिन मोड करके एक फंक्शन का नाम है जो प्री डिफाइंड है। प्री डिफाइंड है मतलब जो पहले से ही बना हुआ है, हमने नहीं बनाया उसको, ओके। तो ऐसा एक फंक्शन है आर्डिनो के अंदर, प्रोग्रामिंग, आर्डिनो प्रोग्रामिंग के अंदर एक प्री डिफाइंड फंक्शन है जो इसका नाम है पिन मोड। इसके थ्रू हम किसी भी पिन को एज एन आउटपुट और इनपुट सेट कर सकते हैं। मतलब कौन से पिन को एज एन आउटपुट सेट करना है वो हम सेट कर सकते हैं, और कौन से नंबर के पिन को हमें एज एन इनपुट सेट करना है वो हम सेट कर सकते हैं, ओके। तो लेटस से मैं यहाँ पर ना पिन नंबर 13 यूज करने वाला हूँ इन ऑर्डर टू गेट दी आउटपुट। सो मैं क्या लिखूंगा, पिन नंबर 13 मुझे यूज करना है, सो पिन का नाम क्या है 13, सो मैं यहाँ पर लिखूंगा 13, ओके। फिर उसके बाद में दूंगा कॉमा, और कॉमा के बाद मैं लिखूंगा मुझे एज एन इनपुट इस पिन को यूज करना है या आउटपुट, ओके। तो मुझे फिलहाल के लिए कोई भी ऐसा कंपोनेंट नहीं है कि जिसके थ्रू मुझे इसको इनपुट देना है। मुझे फिलहाल क्या चाहिए, एलईडी को सप्लाई चाहिए, इसके लिए मुझे इस पिन से क्या चाहिए, आउटपुट चाहिए, राइट। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा OUTPUT आउटपुट, ओके। आउटपुट इज इन कैपिटल लेटर्स बिकॉज इट इज अ सिंथेटिकल थिंग, ओके। आउटपुट लिखूंगा। सो पिन मोड क्या है, एक फंक्शन का नाम है। और ये 13 और आउटपुट क्या है, जैसे हम देखो यहाँ पर एक मशीन है, इस मशीन को कुछ तो इनपुट दे रहे हैं हम यहाँ से, ये जो दिख रहा है आपको एरो, इस एरो के थ्रू इस मशीन को सप्लाई दे रहे हैं, राइट। मतलब इस एरो के थ्रू हम कुछ तो इनपुट इस मशीन को दे रहे हैं, राइट। वैसे ही जो फंक्शन को हमें इनपुट देना होता है वो इनपुट हम यहाँ से, ये जो पैरेंथेसिस में जो चीज लिखी है ना, वो चीज क्या है, इस फंक्शन को दिया जाने वाला इनपुट है, ओके। सो दिस इज द इनपुट। जैसे हम मशीन को इनपुट देते हैं वैसे इनपुट है फंक्शन का। तो दो चीजें मैं कॉमा से सेपरेट करके इस फंक्शन को क्या कर रहा हूँ, इनपुट दे रहा हूँ, ओके। तो जब ये फंक्शन चलेगा, कोई भी प्रोग्राम होता है तो फर्स्ट लाइन से स्टार्ट होता है। जो आपको ऊपर के 2 लाइंस दिख रहे हैं वो कमेंट्स है, उसका कोई यूज नहीं है, इसके लिए मैं उसको मिटा दे रहा हूँ, ओके।
तो फर्स्ट लाइन है फंक्शन जो पहले से हम बना रहे हैं यहाँ पर वाइड सेटअप का फंक्शन, इस फंक्शन पहले अपने आप कॉल हो जाएगा, और उसके बाद जो पिन मोड फंक्शन है इट विल बी रन आउट। ओके, ये जो पिन मोड करके फंक्शन लिखा है वो पहले एग्जीक्यूट होगा। जब ये एग्जीक्यूट होगा तो हम आर्डिनो को बता रहे हैं कि जो पिन नंबर 13 है उसको एज एन आउटपुट सेट करो। ओके ओके, जो हम तो हमने सिर्फ एक ही पिन यूज करना है, तो इसके लिए हमने सिर्फ यहाँ पर एक ही बार पिन मोड का फंक्शन लिखा। ओके, सो यहाँ पर जो लूप लिखा है वॉइड लूप करके, ये अनदर फंक्शन है। जब ये फंक्शन चलकर खत्म हो जाएगा, कंट्रोलर क्या करेगा, वन बाय वन ये फंक्शन को चलाएगा। जब ये फंक्शन खत्म हो जाएगा इट विल, जो वाइड लूप करके फंक्शन है इट विल कम टू दिस पॉइंट। ओके, ये इस वाइड लूप के फंक्शन के तरफ आ जाएगा। तो वाइड लूप में जब ये कंट्रोलर अपना आ जाएगा, क्या करेगा वो, जो भी इसके अंदर हम चीजें लिखेंगे इट विल बी कंटिन्यूअसली एग्जीक्यूट। देखो फंक्शन जो वाइड है उसको अभी आप फिलहाल के लिए इग्नोर करो, क्योंकि मैं इसका कंसेप्ट आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन जो ये लूप करके लिखा है ना, ये लूप क्या है, एक फंक्शन का नाम है। ओके, और जो पैरेंथेसिस है उसके अंदर हम इनपुट दे सकते हैं। अभी फिलहाल के लिए हमें कोई इनपुट नहीं देना है, इसके लिए हम पैरेंथेसिस को एम्प्टी रख रहे हैं। तो वाइड लूप के अंदर यहाँ पर जो करली ब्रैकेट स्टार्ट हुआ है और करली ब्रैकेट एंटर हुआ है, ये इस फंक्शन का स्कोप है। मतलब अगर आप इस फंक्शन से कोई काम करवाना चाहते हैं तो वो सब चीजें इस करली ब्रैकेट स्टार्ट और करली ब्रैकेट एंड के अंदर ही आपको लिखना पड़ेगा। ओके, सिमिलरली यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी एक करली ब्रैकेट है और यहाँ पर भी एक करली ब्रैकेट है, स्टार्टिंग करली ब्रैकेट, एंडिंग करली ब्रैकेट। जो जो भी हमें इस सेटअप फंक्शन के लिए लिखना है उस करली ब्रैकेट्स के अंदर लिखेंगे। वैसे ही जो वाइड लूप है उसका भी एक स्कोप है, और स्कोप को हमने डिफाइन किया है इस करली ब्रैकेट के थ्रू। ओके, तो इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि जो पिन मोड है वो 13, जो पिन नंबर हमने यूज किया एज एन आउटपुट, वो अभी आउटपुट दे हमें 5 वोल्ट का, वो हम लिखेंगे। ओके, तो हम उसके लिए और एक प्री डिफाइंड फंक्शन यूज करेंगे और उसका नाम है डिजिटल राइट, WRITE। ये जो डिजिटल राइट क्या है, एक फंक्शन ही है, जो प्री डिफाइंड फंक्शन है हमारे इस प्रोग्रामिंग के अंदर। ओके, सो मैं यहाँ पर डिजिटल राइट लिखा हूँ। डिजिटल क्यों, क्योंकि ये जो फंक्शन है फंक्शन का नाम है डिजिटल राइट, और ये डिजिटल राइट फंक्शन क्या करता है, जो भी आपके जो डिजिटल पिन है, जो 0 से 13 नंबर तक पिन है, वो आपको डिजिटल आउटपुट देंगे। मतलब इधर 0 देंगे और 1 देंगे। 0 का मतलब होता है 0 वोल्टेज और 1 का मतलब होता है 5 वोल्टेज। ओके, तो डिजिटल पिन से मुझे क्या चाहिए, आउटपुट चाहिए। तो पिन नंबर 13 से मुझे चाहिए अभी हाई आउटपुट चाहिए, HIGH। हाई मतलब होता है 1। मैं इस पिन को एज एन आउटपुट यूज कर रहा हूँ, पिन नंबर 13 को। सो आउटपुट मेरा कुछ भी हो सकता है, 0 हो सकता है या फिर 1 हो सकता है, राइट। तो मुझे क्या चाहिए अभी स्टार्टिंग में मुझे आउटपुट 5 वोल्ट चाहिए, मतलब मुझे 1 चाहिए। तो 1 को आप रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पर हाई करके लिखते हैं, HIGH हाई। ओके, और उसके बाद आपको देना है सेमी कोलन। ओके, सेमी कोलन का मतलब होता है ये स्टेटमेंट यहीं पर खत्म हो चुकी है। कंट्रोलर को पता चलने के लिए हम सेमी कोलन देते हैं यहाँ पर। फिर बाद में यहाँ पर मैं डिजिटल राइट, जब कंट्रोलर एग्जीक्यूट करने लगेगा इस लाइन बाय लाइन, तो जब इस लाइन पे हमारा कंट्रोलर यानी कि प्रोसेसर, जो हमारा प्रोसेसर होता है हमारे कंप्यूटर के अंदर, जब इस लाइन को एग्जीक्यूट करना चाहेगा तब उसको पता चलेगा जो पिन नंबर 13 है उसमें से मुझे क्या आउटपुट देना है, हाई देना है। हाई मतलब होता है +5 वोल्ट, +5 वोल्ट मतलब मुझे 1 आउटपुट चाहिए। तो इट विल गिव यू 1 5 वोल्ट सप्लाई फ्रॉम दिस पिन नंबर 13। ओके, सो नेक्स्ट थिंग व्हाट आई नीड टू डू, आई नीड टू वेट फॉर सम टाइम, क्योंकि जो 5 वोल्ट आ रहा है वो कंटिन्यूअसली आ रहा है। मैं चाहता हूँ कि 5 वोल्ट सिर्फ 1 सेकेंड के लिए आ जाए और उसके बाद वो 5 वोल्ट का सप्लाई 0 हो जाए, मतलब 0 वोल्ट हो जाए। उसके लिए मैं और एक फंक्शन का यूज करूंगा जिसका नाम है डिले, DELAY। ये जो डिले फंक्शन होता है ये क्या करता है, सपोज मैं यहाँ पर जो इनपुट ले रहा है डिले फंक्शन, वो एज एन इनपुट लेता है मिली सेकेंड में। सो 1000 मिली सेकेंड इज 1 सेकेंड, राइट। तो यहाँ पर मैंने 1000 मिली सेकेंड लिखा है, इसका मतलब 1 सेकेंड। ओके, ये जो डिले फंक्शन है ये डिले भी इनबिल्ड फंक्शन है। ये क्या करता है, जब कंट्रोलर एक लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है और जब इस लाइन पे हमारा कंट्रोलर या फिर प्रोसेसर आता है तब क्या करता है, 1 सेकेंड के लिए यहाँ पर हॉल्ट होता है। 1 सेकेंड के लिए यहाँ पर रुक जाता है, वो आगे भी नहीं बढ़ता पीछे भी नहीं जाता, वो सिर्फ इसी लाइन पर रुक जाता है। मतलब सपोज ऐसा समझो कि एक लाइन 1 सेकेंड के लिए वो आराम करता है। ओके,
सो दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस डिले फंक्शन। मैं यहाँ पर वेट क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे 5 वोल्ट कम से कम 1 सेकेंड के लिए चाहिए, राइट। उसके बाद मुझे क्या चाहिए, उस 5 वोल्ट को सप्लाई को मुझे 0 वोल्ट करना है, क्योंकि हमें एलईडी को ब्लिंक करना है। तो ब्लिंक करने के लिए 5 वोल्ट एक बार देना होगा, फिर 0 वोल्ट देना होगा, राइट। तो उसके लिए आई एम गोइंग टू राइट द सेकेंड कमांड, so that this pin number 13 will give you the 0 volt supply. So for that purpose what I'm going to do, I just going to write same command, digital write, जैसे हमने ऊपर लिखा था ना वैसे ही में लिखेंगे, digital write WRIT। और उसके बाद हम पिन नंबर 13 से, अभी हमें यहाँ पर हाई का मतलब होता है 5 वोल्ट, ओके। तो 5 वोल्ट सप्लाई हमें मिल रहा है अभी पिन से, लेकिन अभी 1 सेकेंड रुकने के बाद हमें जो पिन नंबर 13 से, उसमें से अभी हाई नहीं चाहिए, हम मतलब 5 वोल्ट नहीं चाहिए, हमें 0 वोल्ट चाहिए। तो उसके लिए मैं यहाँ पर लिखूंगा लो, LOW। अभी यहाँ पर हाई का मतलब है 5 वोल्ट, और जो लो लिखा हूं मैंने उस लो का मतलब है 0 वोल्ट। मतलब पिन नंबर 13 से मुझे 5 वोल्ट सप्लाई मिलेगा, और फिर 1 सेकेंड के लिए हमारा कंट्रोलर यहाँ पर क्या हो जाएगा, हॉल्ट हो जाएगा। उसके बाद 1 सेकेंड के बाद, आफ्टर 1 सेकेंड, मेरा जो पिन नंबर 13 है उसमें से जो हमें सप्लाई मिलेगा वो लो है, लो यानी कि 0 वोल्ट। सो यहाँ पर मैंने यहाँ पर जो थर्ड कमांड लिखी है वॉइड लूप के अंदर, थर्ड कमांड विल गिव यू द 0 वोल्ट सप्लाई फ्रॉम पिन नंबर 13, ओके। सो पिन नंबर 13 के बाद 0 सप्लाई जब मुझे मिलेगा, तब मुझे 0 सप्लाई भी कुछ समय के लिए चाहिए ना, ओके। तो इसके लिए मुझे 0 सप्लाई कम से कम 1 सेकेंड के लिए चाहिए। इसके लिए मैं यहाँ पर लिखूंगा DELAY, फिर से वही कमांड। डिले का मतलब होता है कि कंट्रोलर वहां पर उतने समय के लिए क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, हॉल्ट हो जाएगा, ओके। सो मैं यहाँ पर भी सपोज 1 सेकेंड के लिए क्या करता हूँ, डिले करता हूँ, ओके। तो यहाँ पर मैंने डिजिटल राइट 13 लो किया, और फिर बाद में मैंने कंट्रोलर को क्या किया, स्टॉप किया उस लाइन के ऊपर, ओके। सो नेक्स्ट थिंग व्हाट आई नीड टू डू, मैंने मेरा प्रोग्राम, दिस इज द ऑल द थिंग आई नीड टू डू इन प्रोग्रामिंग पार्ट, ओके। दिस इज ऑल द थिंग दैट आई नीड टू डू इन प्रोग्रामिंग पार्ट। सो ये जो प्रोग्रामिंग पार्ट है इट्स ओवर, इसके बाद मुझे कुछ नहीं करना है। जब कंट्रोलर फर्स्ट सेटअप फंक्शन को एग्जीक्यूट करेगा, तब इट विल रन दिस फर्स्ट लाइन, फर्स्ट फंक्शन, दैट इज पिन मोड। तो पिन मोड क्या करेगा, पिन नंबर 13 को एज एन आउटपुट सेट करेगा, क्योंकि हमारे जो पिन्स होते हैं वो एज एन आउटपुट और इनपुट दोनों के लिए यूज होते हैं। तो हमें सिर्फ अभी आउटपुट चाहिए, इसके लिए हमने क्या सेट किया, एज एन आउटपुट सेट किया, ओके। तो उसके बाद ये जो फंक्शन होगा वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये लास्ट लाइन है। फिर इट विल कम इन दिस लूप फंक्शन। जो लूप फंक्शन है वो कंटिन्यूअसली एग्जीक्यूट होता रहता है। तो फर्स्ट लाइन हमारी क्या है, जो पिन नंबर 13 से, उसमें से हमें आउटपुट चाहिए 5 वोल्ट का। तो इसके लिए जो फर्स्ट लाइन है डिजिटल राइट करके, दैट विल गिव यू द 5 वोल्ट फ्रॉम दिस पिन नंबर 13। उसके बाद हम डिले कर रहे हैं 1 सेकेंड के लिए, क्योंकि हमें जो 5 वोल्ट सप्लाई है वो कंटिन्यूअसली 1 सेकेंड के लिए मिले। उसके बाद हम पिन नंबर 13 से ही लो सप्लाई चाहते हैं, 0 वोल्ट सप्लाई चाहते हैं, राइट। तो उसके लिए हमने जो थर्ड कमांड लिखी है वो डिजिटल राइट करके, और पिन नंबर 13 और लो, इसका मतलब होता है कि जो हमें सप्लाई पिन नंबर अभी 13 से मिलेगा वो क्या होगा, 0 वोल्ट होगा, ओके। और 0 वोल्ट कब तक मिलेगा, 1 सेकेंड के लिए मिलेगा। अब मुझे बताओ, यहाँ से जब स्टार्ट हुआ और हमने एंड तक यहाँ पर आ गए, तो हमारा कंट्रोलर क्या करेगा, कंट्रोलर हमारा फिर से फर्स्ट लाइन को एग्जीक्यूट करेगा। मतलब यहाँ पर 1 सेकेंड रुकने के बाद कंट्रोलर फिर से हमारे फर्स्ट लाइन को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करेगा, राइट। सो दैट्स व्हाई द नेम ऑफ दिस फंक्शन इज गिवन लूप। लूप मतलब क्या होता है, कंटिन्यूअसली उसी थिंग में इन्वॉल्व होता है, राइट। उसी को हम लूप कहते हैं, राइट। सो दिस इज अ लूप बिकॉज controller after executing the last line, it will again go back to the first line, so again it will continue this same thing. So इसके वजह से क्या होगा, कुछ समय के लिए हमें पिन नंबर 13 से 5 वोल्ट सप्लाई मिलेगा, और कुछ समय के लिए हमारे पिन नंबर 13 से लो सप्लाई मिलेगा, ओके। सो अभी हमने कोड कंप्लीट किया है इस आर्डिनो बोर्ड के लिए। अब हम क्या करते हैं, कनेक्शन करते हैं। तो जो पिन नंबर 13 है हमारी, उसमें से हमें क्या मिल रहा है, पॉजिटिव सप्लाई, यानी कि 5 वोल्ट 0 वोल्ट 5 वोल्ट 0 वोल्ट कंटिन्यूसली 1 सेकेंड के लिए अभी मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे, 5 वोल्ट सप्लाई हम एलईडी के एनोड को देंगे। देखो यहाँ पर एलईडी का एक कैथोड है, और ये हमारा एलईडी का एनोड है, ओके। तो मैं क्या करूंगा, एनोड को डायरेक्टली सप्लाई दूंगा पिन नंबर 13 से। तो दिस इज माई पिन नंबर 13, ओके। पिन नंबर 13 मैंने क्या किया,
एलईडी के एनोड को कनेक्ट किया। ओके, अभी एलईडी का जो सेकेंड पिन है वो आपको सबको पता है, वो कैथोड होता है। कैथोड मतलब नेगेटिव टर्मिनल। ओके, सो नेगेटिव टर्मिनल हमें क्या करना है, एलईडी को देना है। नेगेटिव टर्मिनल से एलईडी को सप्लाई देना है, नेगेटिव सप्लाई। तो नेगेटिव सप्लाई हमें कहाँ से देंगे, तो इसका आंसर है कि जो हमारे आर्डिनो बोर्ड है उसके ऊपर कुछ पिन्स है जिसका नाम है जीएनडी करके। जैसे देखो यहाँ पर 13 के ऊपर एक जीएनडी करके पिन लिखा है। जीएनडी इस पिन का नाम है, उसके आगे जो पिन है जो रेड कलर में आपको दिख रहा है अभी, वो उस पिन का नाम है जीएनडी करके। एंड सिमिलरली आप देखेंगे यहाँ पर भी 2 जीएनडी करके है नीचे की तरफ। ओके, यहाँ पर भी आपको 2 जीएनडी मिलेंगे। ये जीएनडी क्या होता है, तो ग्राउंड होता है। तो बेसिकली इट विल एक्ट एज एन नेगेटिव। जैसे हमारा कैथोड का सॉरी एनोड का पॉजिटिव होता है, वैसे हमारा जो जीएनडी होता है वो एज एन नेगेटिव एज एन एक्ट करता है। तो हम क्या करेंगे, जो हमें सेकेंड पिन को, एलईडी के सेकेंड पिन को जो हमें नेगेटिव सप्लाई देना है, यानी कि हमें जीएनडी का सप्लाई देना है, नेगेटिव यानी कि जीएनडी होता है, तो हम क्या करेंगे, इसको जीएनडी में कनेक्ट करेंगे। तो जीएनडी को कनेक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हम इसको नेगेटिव और ये जो पिन नंबर 13 है वहां से हमें पॉजिटिव सप्लाई कंटिन्यूअसली मिल रहा है। ओके, तो देखो अब मैंने कनेक्शन तो किया है, अभी हमारा एलईडी ग्लो हो रहा है क्या, तो आंसर ये नहीं, हमारा एलईडी ग्लो नहीं हो रहा है। ओके, सो फॉर दैट पर्पस व्हाट आई नीड टू डू, आई नीड टू स्टार्ट द सिमुलेशन। जो सिमुलेशन हमने यहाँ पर बनाया है वो सिमुलेशन हमें क्या करना है, रन करना है। ओके, हमने इस सिमुलेशन अभी बनाया है उसको हमें रन करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो ऑप्शन है स्टार्ट सिमुलेशन, तो वहां पर हम आएंगे और उसको क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। जैसे हमने क्लिक किया, यू विल सी दैट आवर एलईडी विल ब्लिंक। ओके, वी हैव गॉट सम एरर हियर। ओके, यहाँ पर हमें कुछ एरर मिली है। एरर इसलिए मिली है क्योंकि देखो यहाँ पर कुछ तो कह रहा है, क्योंकि हमारे जो प्रोग्राम हमने किया है उसमें कुछ तो एरर है, और एरर कुछ तो बता रहा है कि इट सीम्स लाइक योर कोड हैज सम एरर्स। अभी देखते हैं यहाँ पर जो पिन लाइन नंबर 12 है उसमें कुछ एरर है। और एरर क्या है, हमारा जो इनबिल्ड फंक्शन है उसका नाम है डिजिटल राइट, और मैंने स्पेलिंग मिस्टेक की है। यहाँ पर डिजिटल राइट की स्पेलिंग में मैंने मिस्टेक किया है, तो आई विल गोइंग टू करेक्ट इट। डिजिटल राइट, तो डिजिटल राइट। ओके, तो देखो जो फंक्शन ऑलरेडी इनबिल्ड नहीं है हमारे आर्डिनो में, जब ऐसा कुछ फंक्शन हम लिखते हैं तो हमें क्या मिलेगा, एरर मिलेगा। इसके लिए जो आर्डिनो में प्रोग्रामिंग में जो इनबिल्ड फंक्शन है, जैसा उसका नाम लिखा है, जैसे कि यहाँ पर मैंने कैपिटल डब्ल्यू लिखा है और बाकी सब चीजें मैंने स्मॉल लिखा है, तो वैसा उसका एक सिंटैक्स है, वैसा ही हमें लिखना होता है। अगर कैपिटल डब्ल्यू की जगह मैं स्मॉल डब्ल्यू लिखूंगा तो इट विल थ्रू में एरर। ओके, मैंने यहाँ पर सिर्फ डिजिटल राइट में मिस्टेक की थी, तो इट विल गिविंग मी अ एरर। सो नाउ इट इज आई थिंक करेक्ट, सो लेट्स स्टार्ट दिस सिमुलेशन। मैंने फिर से एक बार स्टार्ट सिमुलेशन पे क्लिक करता हूँ, तो यू विल सी दैट, देखो यहाँ पर जो मेरा एलईडी है अभी ऑन है। ओके, और देखो हमारा एलईडी ऑन हो रहा है, ऑफ हो रहा है। आर यू एबल टू सी दिस थिंग? देखो हमारा एलईडी ऑन हो रहा है, ऑफ हो रहा है, 1 सेकेंड के लिए ऑन हो रहा है और 1 सेकेंड के लिए क्या हो रहा है, ऑफ हो रहा है, राइट। और 1 सेकेंड के लिए क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने जो प्रोग्रामिंग की है और जिसमें हमने डिले करके फंक्शन का यूज करके जो टाइम हॉल्ट किया है उसमें हमने 1 सेकेंड का मेंशन किया है। ये 1000 मिली सेकेंड में है, और 1000 मिली सेकेंड यानी कि 1 सेकेंड। ओके, so that's why this LED is blinking only for 1 second, right? अगर हम इस एलईडी को ब्लिंक जो कर रहा है हमारा एलईडी, उसको अगर हम फास्ट करना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा, हमें इस टाइम को क्या करना है, रेड्यूस करना है। जस्ट मिनट, इस जो 1000 मिली सेकेंड है उसको हमें रेड्यूस करना है। सपोज मैं इस 1000 की जगह आधा सेकेंड देना चाहता हूँ, तो मतलब मेरा कितना हो जाएगा, 500 मिली सेकेंड हो जाएगा, राइट। तो मुझे पहले एक्चुअली कोई भी अगर मुझे चेंजेस करना है तो मुझे सिमुलेशन को स्टॉप करना होगा, तो देन आई विल डू द चेंजेस। ओके, ओके, देखो मैंने यहाँ पर जो 1000 मिली सेकेंड था उसको मैं 500 मिली सेकेंड कर रहा हूँ, और 500 मिली सेकेंड यानी कि हाफ सेकेंड। ओके, तो मैंने 1000 की जगह भी 500 लिखा हो, और देखते हैं अभी सिमुलेशन स्टार्ट करके, तो इट विल ग्लो फास्टर देन प्रीवियस वन। ओके, देखो अगर फास्ट ग्लो हो रहा है, पहले से ज्यादा फास्ट ग्लो हो रहा है।
अगर हमें और भी फास्ट करना है इसको ब्लिंक करना है, तो आई नीड टू चेंज दिस 500 टू लेसर देन दैट वैल्यू। ओके, मैं सपोज यहाँ पर 100 मिली सेकेंड लिखता हूँ। ओके, दिस इज माई 100 मिली सेकेंड। अगर मैं 100 मिली सेकेंड लिखूंगा तो मेरा जो एलईडी होगा वो फास्ट ब्लिंकिंग करना स्टार्ट होगा। तो देखो अभी मेरा एलईडी जो है बहुत ही फास्ट ब्लिंक हो रहा है, आपको दिखाई भी नहीं दे रहा होगा। ओके, so till this thing we have learned many things, but might be you have some doubts. Okay, so if you have any kind of doubt, let me know in chat section. कोई भी आपके पास अगर डाउट आ रहा है मन में कैसे ब्लिंक हो रहा है, या फिर मैंने प्रोग्रामिंग में कुछ यहाँ पर कोई चीज क्यों लिखी है, या फिर कोई डाउट है, तो आप पूछ लेना। ओके, आर यू गेटिंग मी? आपको समझ रहा है? लेट मी नो इन चैट सेक्शन। अरे कोई तो रिस्पॉन्स करो। नो डाउट। ओके, इट्स रियली वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। अगर मैंने प्रोग्रामिंग आपको आज पढ़ाई है तो आपको पास कोई डाउट नहीं है, तो रियली इट्स वेरी वर्थफुल फॉर मी। देखो, प्रोग्रामिंग का मतलब ही होता है कि कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देना, और इंस्ट्रक्शन हमें जैसे उस प्रोग्रामिंग को डेवलप किया है, जो भी फंक्शन इनबिल्ड है उसको हमें एज इट इज यूज करना होता है। ओके, तो अगर आपको कोई भी डाउट है तो पूछ लेना। फिलहाल तो वैष्णवी एंड तेजस्विनी आर सेइंग दे आर नो डाउट्स एंड दे आर गेटिंग एवरीथिंग। ओके, ओके, हमने अब एक सिंपल सा प्रोग्राम किया एलईडी ब्लिंक करने का, राइट। नेक्स्ट टाइम हम क्या करेंगे, हम इस ट्रैफिक लाइट बनेंगे। हम क्या करेंगे, एक ट्रैफिक लाइट बनेंगे, और उस समय हम क्या करेंगे, जो हमारा ब्रेड बोर्ड होता है उसका हम इस्तेमाल करेंगे। मेनी स्टूडेंट्स हैव कंफ्यूजन अबाउट दिस ब्रेड बोर्ड, सो टुडे लेट अस क्लियर अबाउट दिस ब्रेड बोर्ड। ये ब्रेड बोर्ड क्या है एक्चुअली, इसके कनेक्शन कैसे, अब आज हम देखते हैं। ओके, 1 मिनट। ये जो आपको व्हाइट कलर का जो चीज आपके दिख रही है आपके स्क्रीन के ऊपर, उसको हम क्या कहते हैं, ब्रेड बोर्ड कहते हैं। ओके, तो उस ब्रेड बोर्ड को हम क्या समझेंगे, वो काम कैसे करता है, उसका एक्चुअल में पर्पस क्या है। क्योंकि आने वाले हम प्रोजेक्ट में जैसे जैसे हमारे प्रोजेक्ट कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगे, वैसे वैसे हमारे इस ब्रेड बोर्ड का इस्तेमाल क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। ओके, तो इसको हमें डिलीट करते हैं। देखो यहाँ पर जो आपको ब्रेड बोर्ड है, यहाँ पर ज्यादा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास एक्चुअल में फिजिकल दिख रहा है ब्रेड बोर्ड। और यहाँ पर एक एडवांटेज है कि यहाँ पर आप अगर एक डॉट पे क्लिक करते हैं तो पूरे डॉट्स आपस में कनेक्टेड है कि नहीं वो बताता है। ओके, देखो यहाँ पर जो ब्रेड बोर्ड है वो ब्रेड बोर्ड कनेक्शन के लिए हम यूज करते हैं। ओके, यहाँ पर आपको जो छोटे छोटे होल्स दिख रहे हैं, या फिर होल्स आपको दिख रहे हैं यहाँ पर, वो होल्स किस लिए है, ऐसा हम यहाँ पर अगर मैं रेड वायर, रेड कलर का स्पॉट दिख रहा है आपको, वहां से मैं एक वायर ऐसा कनेक्ट कर सकता हूँ। ये जो मेरा ग्रीन कलर का आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ना, वो एक वायर है। तो मैंने इस होल्स में वायर को कनेक्ट करने के लिए इस ब्रेड बोर्ड का इस्तेमाल कर सकता हूँ। ओके, तो ब्रेडबोर्ड का इस्तेमाल हमारे सिर्फ कनेक्शन पर्पस के लिए, इसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट नहीं है। ओके, देखो यहाँ पर सबसे ऊपर जो डॉट्स है ना, अगर उसके एक भी डॉट्स पर मैं अपना कर्सर लेके जाता हूँ, तो इट विल गिविंग मी अ होल डॉट्स कनेक्टेड। देखो यहाँ पर मैं कर्सर लेके गया हूँ सबसे ऊपर वाले डॉट्स में, एक डॉट पर मैंने सिर्फ कर्सर लेके गया और यहाँ के सारे डॉट्स आपस के कनेक्टेड है, मुझे दिखा रहा है। The line that is in a green color is showing me that they all dots are connected in respectively। आपस में वो कैसे कनेक्टेड है, एक दूसरे से वो कनेक्टेड है। क्योंकि वो कनेक्टेड इसलिए क्योंकि उस डॉट्स के नीचे ना एक मेटल की प्लेट है, और मेटल के प्लेट के ऊपर ऐसे डॉट्स, मतलब ये जो ऊपर का कवर है उसके ऊपर डॉट्स है, ऊपर का कवर लगाने से नीचे के जो मेटल्स की प्लेट है वो डॉट्स आपस में क्या है, कनेक्टेड है। ये जो डॉट्स आपस में कनेक्टेड है, कनेक्टेड क्यों है, क्योंकि ये जो ऊपर वाले डॉट्स है उसके नीचे जो मेटल्स की प्लेट है वो कंटिन्यूअसली यहाँ से लेके यहाँ तक एंड तक गई है। तो यहाँ पर देखो जब भी हम ब्रेडबोर्ड को देखेंगे ना, तो ऊपर के सारे डॉट्स आपस में हॉरिजॉन्टली कनेक्टेड होते हैं। हॉरिजॉन्टली मतलब एक रो है, राइट।
whole row is connected. This whole row is connected. Okay. Similarly, the row behind this row is also connected horizontally. Okay. The row, second row, that is also connected horizontally. जो second row आपको दिख रही है ना, वो भी आपस में connected है. देखो यहाँ पर अभी मेरा कर्सर यहाँ पर है. ओके. मैं किसी भी एक पॉइंट पे अगर कर्सर लेके जाऊंगा तो it will show me that all these dots, all these holes are connected. Okay. So the first two lines means first two rows are connected horizontally. Okay. अब उसके नीचे आते हैं. अब मैं यहाँ पर फर्स्ट दो रो को छोड़ के नेक्स्ट नीचे उसके नीचे आ जाऊंगा तो मुझे देखूंगा कि यहाँ पर किसी भी होल्स में अगर मैं कनेक्ट कर रहा हूँ तो इट विल शोइंग मी दैट दे आर वर्टिकली कनेक्टेड. जो होल्स है वो वर्टिकली कनेक्टेड है. देखो यहाँ पर मैं किसी भी एक लाइंस पे अगर मैं लेके जाता हूँ किसी भी एक डॉट्स पर तो दिख रहा है आप सभी को कि यहाँ पर जो ग्रीन कलर्स में आपको छोटे छोटे डॉट्स दिख रहे हैं वो कैसे कनेक्टेड है. ग्रीन कलर का शो कर रहा है मतलब वो आपस में कनेक्टेड है. तो यहाँ पर जो आपको डॉट्स दिख रहे हैं आप सभी को वो वर्टिकली कनेक्टेड है. कैसे कनेक्टेड है? वर्टिकली. ओके. और ये ऊपर वाले डॉट्स कैसे कनेक्टेड है? हॉरिजॉन्टली. ओके. तो जब भी आपको यहाँ पर एक सप्लाई सपोज आपने यहाँ से एक वायर कनेक्ट कर दी. ओके. तो ये जो वायर आपने यहाँ से कनेक्ट किया किसी भी डिवाइस या फिर किसी भी सेंसर को. ओके. तो उसके जो सप्लाई आपको मिल रहा है वो सारा सप्लाई आपको इस वर्टिकली जो भी डॉट्स कनेक्टेड है उन सब में भी मिलेगा. वैसे ही अगर सपोज मैं यहाँ पर कोई वायर कनेक्ट करके हॉरिजॉन्टल में एक वायर कोई तो कनेक्ट करो यहाँ पर से इस वायर से कोई तो सप्लाई आ रहा है. ओके. तो हॉरिजॉन्टली जो ये आपस में वायर्स कनेक्ट आपस में डॉट्स कनेक्टेड है वहां से आपको कहीं से भी आपको एक सप्लाई वही सेम सप्लाई आपको क्या होगा मिलेगा. राइट. सो दिस इज हाउ दिस ब्रेडबोर्ड वर्क्स. सिमिलरली देखो यहाँ पर भी जो मैं कर्सर लेकर जाता हूँ तो कर्सर लेकर जाने के बाद देखो यहाँ पर मुझे कौन से डॉट्स आपस में कनेक्टेड है. आइदर दे आर वर्टिकली कनेक्टेड और हॉरिजॉन्टली कनेक्टेड मुझे बता रहे. ऑटोमेटिक बता रहे. कुछ करने की जरूरत नहीं मुझे. ओके. सिमिलरली एंड सेकेंड लास्ट रो एंड लास्ट रो ये दो आपस में कैसे कनेक्टेड है? हॉरिजॉन्टली कनेक्टेड है. ओके. दे आर हॉरिजॉन्टली कनेक्टेड. So first two rows and last two rows are connected horizontally. Okay. And the rows or the dots they are in between these two rows they are connected vertically. A dot से vertically और A dot से vertically और ऊपर वाले dots horizontally और नीचे वाले dots कैसे connected है? Horizontally. Okay. देखो यहाँ पर कुछ नेमिंग कन्वेंशन भी लिखा है जैसे कि ABCD EF GH I J K L करके कुछ नेमिंग कन्वेंशन लिखा है. वो सिर्फ अपने समझने के लिए उसका हम कहीं पर भी सप्लाई कनेक्ट कर सकते हैं. ओके. तो नेमिंग कन्वेंशन के लिए मैं F में सप्लाई कनेक्ट कर रहा हूँ तो GHIJ वहां से कहीं से भी मुझे वही सप्लाई रिटर्न में मिलेगा. ओके. सो दिस इज व्हाट अबाउट ब्रेडबोर्ड. सो नेक्स्ट लेक्चर में जब हम ट्रैफिक लाइट वगैरह बनाएंगे तब हमें 3-4 वायर्स का यूज करना पड़ेगा. ओके. और सब 3 LED रहेंगे हमारे पास. 3 LED के लिए 3 ग्राउंड देना पड़ेगा. तो 3 ग्राउंड देने के बजाय मैं क्या करूंगा ये जो सप्लाई मिल रहा है मुझे ग्राउंड आर्डिनो बोर्ड से मैं सिंपली यहाँ पर हॉरिजॉन्टली किसी भी एक डॉट से कनेक्ट करूंगा. देखो यहाँ पर मैंने अभी एक कनेक्शन किया है. राइट. तो यहाँ पर मैंने ग्राउंड का सप्लाई यहाँ पर जो ग्राउंड का सप्लाई मैंने यहाँ से आर्डिनो बोर्ड से मुझे मिल रहा है वो ब्रेड बोर्ड के एक डॉट से मैंने कनेक्ट किया. राइट. लेकिन यहाँ पर जो मेरा ब्रेड बोर्ड है यहाँ पर जो मेरा ब्रेड बोर्ड है यहाँ पर मैंने कनेक्ट किया. राइट. तो यहाँ पर मैंने कनेक्ट किया है तो आपस में ये डॉट्स हॉरिजॉन्टली कनेक्टेड है. तो अगर मुझे सिमिलर ग्राउंड और एक कहीं पर कनेक्शन चाहिए तो मैं ब्रेड बोर्ड पर और एक ग्राउंड है वो यूज नहीं करूंगा बल्कि मैं इस ब्रेड बोर्ड के ऊपर जो भी डॉट्स है आपस में कनेक्टेड उसमें से एक में सप्लाई ग्राउंड के लिए ले सकता हूँ. मतलब यहाँ से अगर मैं सप्लाई ले रहा हूँ और एक किसी अपने कंपोनेंट्स के लिए तो यहाँ से मुझे वही ग्राउंड मिलेगा क्योंकि ये डॉट्स कैसे कनेक्टेड है? हॉरिजॉन्टली कनेक्टेड है. राइट. अगर मैं चाहिए तो ये जो सप्लाई मैं अपने ब्रेडबोर्ड को दे रहा हूँ वो वर्टिकली भी दे सकता हूँ कहीं पर भी दे सकता हूँ. डिपेंड्स अपॉन मी. ओके. मुझे कौन सा कन्वीनियंट लगता है उसके हिसाब से मैं उसको क्या करूंगा सप्लाई दूंगा. सपोज अभी मैंने ग्राउंड का सप्लाई किसी वर्टिकल लाइंस में कनेक्ट किया है यहाँ पर कहीं कनेक्ट किया है. ओके.
तो यहाँ पर मैंने कनेक्ट किया है। तो मैं अगर मुझे और एक ग्राउंड चाहिए किसी और कंपोनेंट्स के लिए, तो मैं क्या करूंगा, फिर से यहाँ से ग्राउंड कनेक्ट नहीं करूंगा किसी और को। ये जो मेरा ब्रेडबोर्ड है वो जो डॉट्स है आपस में जो कनेक्टेड है, उसमें से किसी एक डॉट से मैं क्या करूंगा, सप्लाई लूंगा, मीन्स वायर कनेक्ट करूंगा, और वो वायर में अपने किसी भी कंपोनेंट को एज एन ग्राउंड दे सकता हूँ। ओके, एंड व्हाई आई डू सो, बिकॉज दिस डॉट्स आर कनेक्टेड वर्टिकली। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट ब्रेडबोर्ड। ब्रेडबोर्ड के बारे में और कुछ जानने की हमें जरूरत नहीं है, बस ब्रेडबोर्ड्स के डॉट्स कैसे कनेक्टेड है उतना ही हमें जानना होता है। ओके, सो till now we have learned many things. We have understand how computer stores things in binary numbers, and why need we do the programming, because हमें प्रोग्रामिंग करना होता है, मतलब इस बोर्ड को इंस्ट्रक्शन देना होता है। और ये जो कमांड्स आपको दिख रहे हैं ना, वो सब आप नोट डाउन करते जाओ। ओके, जो पिन मोड है, एक कमांड हमें बताने के लिए कि हमें पिन नंबर 13 आउटपुट सेट करना है। सो सिमिलरली ये जो सेकंड कमांड है डिजिटल राइट, ये हमें पिन नंबर 13 से आउटपुट सेट कर रहे हैं। तो कौन सा आउटपुट चाहिए हमें, 5 वोल्ट चाहिए या 0 वोल्ट चाहिए, तो 5 वोल्ट के लिए ए कमांड। सो कुछ देर के लिए हमें वहां पर रुकना है तो डिले कमांड, फिर बाद में हमें लो सप्लाई चाहिए हमें उसी पिन से, तो इसके लिए थर्ड कमांड। सो सिमिलरली उसके बाद भी फिर हमें रुकना है, इसके लिए फोर्थ कमांड। ओके, सो टिल नाउ इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज लेट मी नो। कोई भी डाउट है इस बोर्ड के बारे में, इस आर्डिनो के बारे में, तो आप बता सकते हो। ओके, या फिर आपको प्रोग्रामिंग में जो भी अगर कोई फंक्शन नहीं समझा है तो देखो, ये जो डिजिटल राइट डिले वगैरह है ना, ये सब फंक्शन के नाम है, और वो आपको ध्यान में रखना ही है। और वो क्या आउटपुट लेता है, क्या इनपुट देता है, वो भी आपको क्या करना है, ध्यान में रखना ही होता है, बिकॉज इसके अलावा अपने पास कोई और ऑप्शन नहीं है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट थिंग्स। देखो यहाँ पर ना अपने पास बहुत सारे कंपोनेंट्स है। आई थिंक यू आर गोइंग टू डू, अपने इसके ऊपर टिंकर कैट पे अपने अकाउंट बना लिया होगा, और आप घर पे ट्राई करते जाओ। ओके, if you are not able to do, then in the next lecture you can ask me. Okay, so make the login id on this tinkercad and you can play with all these components. Okay, so next time हम अगर हमें ये जो पुश बटन दिख रहा है आपको, ओके, इस पुश बटन से भी हम एलईडी को ऑन ऑफ कर सकते हैं। ओके, मतलब इस बटन पर अगर मैं क्लिक करूंगा, मैं अपने प्रोजेक्ट में इस बटन का यूज करके अगर मैं क्लिक करूंगा, तो मेरा एलईडी ऑन होगा, एलईडी ऑफ होगा, आई कैन डू ऑल दीज थिंग्स। So go through this website, do by your own, try to do by your own, and whatever we have did till now, try to apply those things in your tinkercad.com website. Okay, so we have many things over here, we are going to explore one by one in next coming lectures. Okay, so our time is now up, so today we stop here. Okay, देखो यहाँ पर जो आपको कंपोनेंट्स दिख रहे हैं ना, वो सिर्फ बेसिक्स है। बेसिक के अलावा भी हमारे पास बहुत सारे कंपोनेंट्स है। यहाँ पर देख रहे हो, आपको माइक्रोबिट मिलेगा, सर्किट असेंबलीज मिलेगा, आर्डिनो बोर्ड मिलेगा। अगर आप ऑल पे क्लिक करते हो तो आपको हर चीज मिलेगी यहाँ पर। जैसे यहाँ पर रजिस्टर, कैपेसिटर, डाइवर्स वगैरह हो गए, तो बहुत सारी चीजें हैं, आप इनको एक्सप्लोर करें। ओके, यहाँ पर देखो हमारे पास एलईडी डिस्प्ले भी है, एलसीडी डिस्प्ले भी है। ओके, so we are going to do all the things one by one. Okay, ऑसिलोस्कोप है, फंक्शन जनरेटर है, बहुत सारी चीजें आईसी वगैरह है। ओके, तो आपको क्या करना है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ना, वैसे वैसे हमें जो कमांड्स वगैरह हमने लिखी है यहाँ पर, वो कमांड्स आपको पता होना जरूरी है, क्योंकि नेक्स्ट प्रोग्रामिंग में हम एक कमांड्स लिखेंगे तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि कमांड्स मैंने यहाँ पर क्यों लिखी है। ओके, इस कमांड का मतलब क्या है। ओके, सो फॉर दैट पर्पज यू नीड टू नोट डाउन ऑल दीज थिंग्स। आप नोट डाउन करो और उसको याद रखो। ओके, सो ये आज हमने सिर्फ डिजिटल स्पिन्स के बारे में सीखा यहाँ पर, जो अपना आर्डिनो बोर्ड है। नेक्स्ट टाइम हम दूसरे भी पिन्स है उसको भी एक एक वन बाय वन क्या करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे। ओके, सो ये हमारे डिजिटल पिन्स है, यहाँ पर भी हमारे बहुत सारे पिन्स है, उनको भी हम वन बाय वन एक्सप्लोर करते जाएंगे। ओके, सो फॉर टुडे इट इज time. Okay, it's 9:30 already, so today we will stop over here. Okay, so next lecture में हम देखेंगे ट्रैफिक लाइट वगैरह कैसे बनाते हैं। ओके, ओके, सतीश सर। सतीश सर। Yes, sir.